गुड इवनिंग इंडिया, कैसे हो सब लोग? होप एवरीवन इज डूइंग वेल। वी आर एट ग्वालियर फोर्ट, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, 6वीं पातशाही हरगोबिंद सिंह जी। सो वाहिगुरू जी साडे नाल हैगे ने मीत ग्रंथी भाई साहब निर्वैल सिंह जी। वाहिगुरू जी खालसा, भाई फतेह बाबा जी। सो थोड़ा जिहा वाहिगुरू जी साध संगत ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਦੱਸੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀ ਕਾਂਸੂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਸੂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਲੇ ਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਥੰਮਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਥੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਂਪਰਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ, ਹੀ ਹੈਡ imprisoned more than 52 ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ? 52 ਸੀ, 56 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ? 52। ਅੱਛਾ, there he has imprisoned 52 kings, or you can say small Hindu Raja. Yeah, they were all Hindu kings. So he had imprisoned them, and they were living like paupers. Their hair had lice in them. No sanitation. All were struggling with poor health. So Waheguru ji, the 6th Guru Hargobind Singh ji, he made sure that that they had nice clothes, the proper clean, living in clean conditions. So they became sevadars of Guru Hargobind Singh ji. So ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ, ਘੋੜੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੋਚੋ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਰਾਮ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੱਲੜ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹ ਆ ਜਾਣ।
ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 5-4 ਜਣੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਪੱਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਪੱਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ 5-7 ਜਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 52 ਤਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਚੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਫੜਾਏ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਧੰਨ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਧੀਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ। ਸਿੰਧੀਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਵੀ ਉਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਗਰੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ अपनी बेइज्जती होंदी देख के छाल मरवाती घोड़े की, ते वो शहीद हो गए। सो वाहिगुरु जी आपको हिंदी में भी बता देते हैं क्या हुआ जब 5th गुरु हमारे हरगोबिंद सिंह श्री गुरु अर्जुन देव जी थे, उनको जब शहीद किया गया, उसके बाद जो 6th गुरु थे उन्होंने मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट लेके आए सेंट सोल्जर का, कि हमें अब अपनी रक्षा भी करनी है और गरीब की भी रक्षा करनी है। तो उन्होंने स्पोर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट, 2 स्पोर्ट्स, एक मीरी एक पीरी की। सो उससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई, बहुत लोग संगठित होते चले गए उनके साथ। इससे उस टाइम के जो मुगल हुकूमत थी उनका तख्त हिलने लगा, उन्हें लगा डर हो गया। उन्हें किसी बहाने से उन्हें सोचा गुरु जी को कैप्चर किया जाए। उन्होंने गुरु हरगोबिंद जी को कैप्चर करके यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्वालियर फोर्ट है इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत मुगलों ने इसको अलग अलग टाइम पे जेल की तरह यूज़ किया। ये आई थिंक बाबा जी 1500 साल तो पुराना किला है। सो ये अभी के जो प्रेजेंट है सिंधिया, इसके अंदर सिंधा स्कूल भी है, गुरुद्वारा भी है, बहुत बड़ा फोर्ट है, सबसे बड़े फोर्ट्स में है ये इंडिया के। सो ये बहुत ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है। ब्रिटिश सरकार ने भी इसको कब्जा करना चाहा, क्योंकि ये है ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन इतनी स्ट्रांग है। इससे तुम मेरठ तक मतलब कब्जा कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर तुमने ग्वालियर को कर लिया, क्योंकि दिल है हिंदुस्तान का, भारत का मध्य प्रदेश। सो पूरा मध्य प्रदेश तुम अपने नीचे कर सकते हो ये किले से। सो ये किला बहुत स्ट्रेटेजिक है। सो उसके बाद क्या हुआ, हम अब किले के अंदर ही चल रहे हैं, बहुत बड़ा किला है ये। हाँ जी, तो हुआ इस तरह से कि हम बात कर रहे थे 6th गुरु हरगोबिंद साहब के बारे में। जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, उसके बाद जहांगीर एम्परर बीमार हो गए, सेहत उनकी काफ़ी ख़राब हो गई। तो उनकी वाइफ बोली कि मैं तो विधवा हो जाऊंगी। उन्होंने साईं मियाँ मीर, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का नींव पत्थर रखा है ना बाबा जी, सो साईं मियाँ मीर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हरमंदिर साहब का नींव पत्थर भी रखा कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमारे हस्बैंड को किसी तरह से ठीक किया जाए। उन्होंने बोला कि जिसको रिक्वेस्ट करनी है ठीक करने के लिए, वो महान शक्ति जो हैं श्री गुरु हरगोबिंद जी, वो तो आपने जेल में डाल रखा है, उनको ही रिक्वेस्ट करनी है, उनको रिहा करो, तभी आप ठीक हो जाओगे साथ के साथ। तो जहांगीर ने उनको रिहा करने के लिए बोला। सो जो 52 जो हमने आपको बताया, उनमें राजपूत थे और कौन से हिंदू को थे सारे, जो आपने बताया बाला कौन से? सारे राजपूत ही। अच्छा, सभी राजपूत थे। बाईतार दबाई की मतलब है मतलब 22 रियासतों के राजे। अच्छा, ओके। सो 42 रियासतों या 22 बाईतार, अच्छा 22 राजे बोला जाता है। राजपूत हिंदू किंग्स थे बेसिकली। उनको, वो यहाँ पे रह रहे थे, उनको इम्प्रिजन किया गया था ग्वालियर में। तो गुरु साहब बोले एम्परर को कि देखो मैं चला, क्योंकि वो राजे गुरु जी के पास आए रिक्वेस्ट करने, देखो कि आप तो रिहा हो जाओगे, हमारी हालात वैसे ही पुराने जैसे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत जुल्म किया जाता था जेल में उन राजाओं पे, पर गुरु जी की वजह से वो बचे हुए थे। वो कहते आप हमें छोड़ के मत जाओ, हमारा तुमसे बिना रह नहीं पाएंगे हम गुरु जी। सो गुरु जी ने रिक्वेस्ट की जहांगीर को कि अगर मैं जाऊँगा तो इन्हें भी साथ में लेके जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। तो जहांगीर ने शर्त रखी, उन्हें पता था वो चालाक थे, उन्हें शर्त रखी कि उन्हें पता था राजपूत का बहुत खुददार कौम है, वो कभी किसी का पलड़ा नहीं पकड़ते, किसी के आगे झुकते नहीं। उन्हें बोला ठीक है
जो आपका पल्ला पकड़ लें आप उनको ले जाना। उन्हें सोचा है कि कौन राजपूत पकड़ लें, और पकड़ भी लिया, अगर 2 3 4 पकड़ लेंगे, इतना कितने पल्ले पकड़ लेंगे। तो फिर जो गुरु हरगोबिंद साहब थे, उन्होंने एक टेलर, एक दर्जी को बुलाया, उसको बोला कि ऐसा चोला साया जाए जिसके 52 बाबा जी पन्नियाँ बोला कलियाँ 52 कलियाँ हों उसके अंदर, ताकि सभी उनके साथ रिहा हो सके। तो उसके बाद फिर उन्होंने रिलीज़ किया, और वहाँ से उनको नाम मिला राजपूतों से दाता बंदी छोड़। गुरु हरगोबिंद साहब, नहीं, गुरु हरगोबिंद साहब को दाता बंदी छोड़ बोला राजपूतों ने बोला। तो उसके बाद ये नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम 10वें गुरु को बाजा वाला है, और बथेरे नाम है ना उनके, साहिब कमाल, दशमेश गुरु, उसी तरह से दाता बंदी छोड़ जो है वो राजपूतों की तरफ से दिया गया एक नाम है 6th गुरु हरगोबिंद साहब का। सो बाबा जी, और वैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं एक जनरल, क्योंकि हम चलते चलते फोर्ट में अब काफ़ी आगे निकल गए हैं। सो फोर्ट में और बहुत कुछ है बाबा। ये फोर्ट का थोड़ा इतिहास दसो, हो रहा की है, स्कूल भी है चलता रहा है ना, एक सिंधिया स्कूल है। ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾ, ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। कितने एकड़ च फैला हुआ किला? ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। पौने 2 किलोमीटर। अच्छा जी। ਹਾਂ थोड़ा 1000 किला तो होना, ज़्यादा ही होना। 1000 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ, 700 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ। 700 एकड़ के आसपास फैला हुआ। चलो कोशिश करते हैं। अब बाबा जी कितनी दूर है पता चले? ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, तो सो मान सिंह पैलेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे। हाँ जी बना ली बाबा जी। और संगत से सबसे रिक्वेस्ट करनी चाहते हैं कि ये 400 साल मनाया जा रहा है इस गुरुद्वारे का, अगले साल असू ਅਸੂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦਾ सो मतलब ये केड़ा महीना होगा जी? 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ। अगले महीने का 2022 का अक्टूबर। ਹਾਂ सो अक्टूबर 2022, जबकि जिसको दिवाली भी उतनी होती है ना बाबा जी, और हम उस टाइम पे बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं असू की मस्या वाले दिन। तो उस दिन यहाँ पे 400 ईयर्स हो जाएंगे। इसको कॉमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा यहाँ पे। तो आप सब लोग जहाँ भी दुनिया किसी भी कोने में बैठे हैं, अभी से अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर सकते हो कि उस टाइम पे आप मध्य प्रदेश जो दिल है भारत का, और आपको पता चलेगा मध्य प्रदेश के लोग कितने अच्छे हैं जब आप यहाँ होगे। सो मैं अब दूसरी बार आया हूँ ज़िंदगी में, पहले भी आया था, और बहुत ही भोले वाले लोग हैं और अच्छे लोग। बाबा जी तुझे कितना टाइम हो गया मध्य प्रदेश रहते हुए? ਅਸੀਂ ਜੀ 79 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ 84 ਦੰਗੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। तो की खेतीबाड़ी करते हो बाबा जी? जमीन हैगी अजे भी? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਗੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਮਸਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ APMC ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹਾਂ, ਪੈਂਦਾ? ਡਬਰਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀ। 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਰਾ ਮੰਡੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡਬਰਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, और नाल मंडी जोड़ देते डबरा मंडी। ओके ओके। बहुत तगड़ी। और डबरा मंडी में जो अब अगर मान लो गन्ना बेचने गए तो उसका भुगतान कितनी देर में हो जाता है? गन्ना क्या मिल वो फेल हो गई है। अब 20 किलोमीटर और एक साइड में मिल बनी है, पर गन्ने वाले परेशानी बता रहे हैं कि पेमेंट जो है सही टाइम पे नहीं करते हैं। ये सारी जगह पे हो रहा है। हाँ, कर्नाटका में गन्ने की वजह सबसे ज्यादा सुसाइड है। उत्तर प्रदेश में 14 महीने, हर जगह पे 1 साल बाद जो पेमेंट। ये गन्ने को ही इतना ज्यादा क्यों बाबा जी लग रहा है आपको? कोई है वैसे आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में कि गन्ने में टाइम लगता है? कोई प्रॉब्लम होती है गन्ने में, इतनी दिक्कत क्यों आती है? पता नहीं क्या कारण है इसके बारे में, क्या कह सकते हैं। किसानों को परेशान करने वाली बात ही है। बिल्कुल। यहाँ वो चाहते नहीं है कि इतना ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और कौन सी फसलें बाबा जी यहाँ पे जो लगाते हैं हमारा मध्य प्रदेश में लोग? गेहूँ धान लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। धान भी होंगी है, कणक भी अच्छी हो जाती है, पंजाब वांगू होंगी है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और जमीन की क्वालिटी कैसे हम देख रहे हैं कि काफी लाल तरह की जमीन भी है बीच बीच में? हर तरह की है, बुंदेलखंड वाली। हाँ, हर तरह की है, काली मिट्टी भी है। अच्छा। तो पंजाब जैसी भी है जमीन।
ऊंची नीची भी है, प्लेन भी है, और रेट भी अलग अलग हैं। जैसे कोई अपने हिसाब से रोड के पास लगती है इनका रेट ज़्यादा है, गाँव में थोड़ा कम है। सो बाबा जी अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान की तरफ जहाँ पे वो जेल हुई थी ना बाबा जी। हाँ, जेल बस आ गई। तो यहाँ पे लग रहा है ऐसे दिन में बहुत पर्यटक आते हैं, दिन में यहाँ पे बहुत घूमने आते लोग जहाँ के आसपास के। तो अब लॉकडाउन के कारण विदेशों से नहीं आ रहे, नहीं तो जहाँ गोरे गोरे दिखते हैं। अच्छा, सो इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं। सो ऑल यू नो हु एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, यू नो दिस इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेबसाइट, ओह सॉरी, प्रोटेक्टेड साइट सवाई मान सिंह पैलेस। सवाई मान सिंह पैलेस है जहाँ हम घुस रहे हैं अभी अंदर। वो सवाई मान सिंह नहीं, शायद राजा मान सिंह। यहाँ पे मैं बाबा जी मैंने शायद 2006 में, शायद 2007 में एक बार आया हुआ हूँ यहाँ पे। और पहले मंदिर होता था। हाँ नहीं, आगे वो जो किला है उसमें तोपे लगी है ना, जो वो आगे पीछे किला है। हाँ, वो मान सिंह का। हाँ, मान सिंह पैलेस। अंदर सराय बनी है, आगरे तक सराय भी है, ओह गुफा है आगरे को जाने के लिए। और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस है इस किले का, क्योंकि इसके अंदर वो बीच में ब्लू कलर का जो आइकॉनिक सा कलर है इसका। सो अब देखेंगे बिल्डिंग के पास जैसे जाएंगे। कमरे हैं जो मर्जी कोई निकल नहीं पाना वहाँ पे। अच्छा अच्छा, इतने कमरे पता नहीं कितने के। सो बहुत कॉम्प्लेक्स रूम्स हैं अंदर, मतलब कि खोज। अच्छा जी, इस जेल में जाना है? तो बंद लग रहा है, खुला अभी? गेट बंद हो गया। चलो, मैं तो जेल का मैंने देखा हुआ है। सो इधर है वो जेल का, बेसिकली आपको दिखा देते हैं। सो बाबा जी ये अंदर जाके थल्ले जेल? नहीं आई है, आ थंबले च नहीं। अच्छा, सो ये है दोस्तों वो जेल, इसके बीच में थंबलों से बांधा था, थंबलों से। अच्छा अच्छा, इन थमलों के साथ उन राजा को थंबलों से बांध देते थे। अच्छा, और राजाओं को थमले से बांध दिया जाता था। जो राजपूत के राजा थे ना, उनको सबको यहाँ बांध दिया जाता था। इसके अंदर है वो एक कुआं है बहुत तगड़ा। हाँ जी हाँ, बावली बावली। सो बावली मतलब अंदर एक कुआं है बहुत तगड़ा। बाकी आगे फोर्ट है दोस्तों। अच्छा, अभी अंदर शो हो रहा है शायद, है ना, कोई साउंड एंड लाइट वाला, रोज शाम को होता होगा आई थिंक। अच्छा चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की। बैठने वाले अंदर फिर। अच्छा, वो पर्यटक वहाँ बैठ जाएंगे। जानना मना कर देना ना, गाड़ी बंद हो गया, खुला है, शो चालू हो गया। अच्छा जी। सो आप अगर कभी आए तो विजिटिंग आवर्स वैसे बता देते हैं, सनराइज टू सनसेट है। और अभी आगे अंदर जा नहीं सकते क्योंकि शो शुरू हो गया, राइट? ठीक है। सो दोस्तों अंदर नहीं जा सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे साउंड लाइट का शो शुरू हो गया। अगर शो देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं, पर हम लेट बहुत हैं, हम शायद अटेंड नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। और सो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगले शहर। कोशिश करेंगे मथुरा वृंदावन से आपको भगवद गीता का, जो भगवद गीता क्या बोलती है किसानी के बारे में, उसने किसानी को सबसे उत्तम काम कैसे बताया। 40,000 से ज़्यादा वर्सेस भगवद गीता में है जो किसान को नियरली भगवान के साथ कंपेयर करती हैं। सो बात करेंगे हम उसके बारे में। खुद श्री कृष्ण जो भगवान थे, उन्होंने बोला कि किसान सबसे ऊपर है, उसको भगवान को सबसे प्यारा है। उसके बाद 2 नंबर पे उन्होंने, ये पहले जाते जाते बस ये देख लो आप कि जहाँ पे बांधा जाता था राजाओं को, जो राजपूत राजे थे उनको, ये 52 थमले हैं, इनके साथ बांध के राजपूत पिलर्स के साथ बांध के राजपूत राजाओं को जेल में रखा गया था। सो वहाँ से आपको श्री कृष्ण जी का जो बचपन है, उनका कैसे एग्रीकल्चर के साथ क्या रिलेशन है, वो मैसेज आपको देंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने रखा समाज सेवियों को, जिसको किसी भी तरह के समाज सेवक हों। पहले नंबर पे किसानों को, और तीसरे नंबर पे रखा तपस्वियों को। और बाबा जी अपने भी तो कहने ने भाई जी आप कहें गुरु नानक देव जी की मैसेज सीगा भी उत्तम सब तो किरत करो नाम जपो वंड के छकू।
किरत करना मतलब मेहनत करनी, खेती करनी। इन्होंने काम नहीं किया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार। हाँ जी, तीसरे खेती नंबर को पे, बहुत उत्तम बोला है। तीसरे नंबर पे नौकरी चाकरी। हाँ जी, सबसे पहले। सो अब यहाँ आई थिंक मध्य प्रदेश आपका मध्य प्रदेश का है ये इंस्ट्रूमेंट? राजस्थान से आप? बहुत खूब। श्योपुर से। और राजस्थान भी बिल्कुल साथ ही में तो है, यहाँ पे शुरू हो जाएगा अभी। भरतपुर जो है उनके राजा के जो है, आज उनके बारे में भी सेलिब्रेट कर रहे थे, भरतपुर के राजाओं का। उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। उनके जो आई थिंक सूरजमल क्या नाम है उनका, जो आज उनका बर्थडे भी तो मनाया जा रहा है ना, राजा का, भरतपुर के राजा का। आज कुछ बड़ा इवेंट है आज, हम अटेंड नहीं कर पाए उसको। उनकी भी आज आई थिंक बर्थडे था। सो इसी बात के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।